بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوار۔ سورج کی پہلی کرن جب علی کے کچے گھر کی کھڑکی سے اندر جھانکی تو وہ پہلے ہی اپنی چارپائی پر بیٹھا اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابوبکر صاحب اپنے بیمار جسم کو سہارا دیتے ہوئے چائے بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابا، آپ آرام کریں، میں بناتا ہوں، علی نے نرمی سے کہا۔ نہیں بیٹا، تمہارا امتحان قریب ہے، تم پڑھو، تمہیں تو ڈاکٹر بننا ہے، ابوبکر نے کہا، ان کی آواز میں وہ خواب جو وہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھتے تھے۔ علی نے کتابیں بند کیں۔ ابا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں ڈاکٹر بنوں گا، لیکن آج میں آپ کے ساتھ کام پر چلوں گا۔ ابوبکر ایک چھوٹی سی لوہے کی دکان میں کام کرتے تھے۔ وہاں کی گرمی، دھواں اور شور، یہی علی کی پرورش کی کہانی تھی۔ جب وہ دکان پر پہنچے، مالک نے غصے سے کہا، ابوبکر، تمہارا بیٹا یہاں کیوں آیا ہے؟ اسے پڑھنا چاہیے۔ صاحب، وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے، ابوبکر نے جواب دیا۔ اس دن علی نے لوہے کی بھٹی کے سامنے کھڑے ہو کر کام کیا۔ پسینہ اس کے جسم سے بہہ رہا تھا، ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ شام کو گھر واپسی پر اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا، میں ڈاکٹر بنوں گا، لیکن صرف ایک عام ڈاکٹر نہیں۔ میں ایسا ڈاکٹر بنوں گا جو غریب لوگوں کا مفت علاج کرے گا۔ ابوبکر نے مسکرا کر علی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، تمہارا دل بڑا ہے، لیکن پہلے تمہیں پڑھائی پر دھیان دینا ہوگا۔ علی نے میٹرک کے امتحانات میں پورے ضلع میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کا نام اخباروں میں چھپا۔ ایک دن شہر کے ایک امیر تاجر، جناب احمد، ان کے گھر آئے۔ ابوبکر صاحب، میں نے آپ کے بیٹے کے بارے میں سنا ہے۔ میں اس کی تعلیم کا خرچ اٹھانا چاہتا ہوں، جناب احمد نے کہا۔ علی کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا، لیکن اس نے شائستگی سے جواب دیا، جناب احمد، آپ کی مہربانی، لیکن میں اپنی محنت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ میری فیس ادا کرنے کے بجائے مجھے پارٹ ٹائم کام دیں۔ جناب احمد حیران رہ گئے۔ انہوں نے علی کو اپنے دفتر میں کلرک کی نوکری دے دی۔ علی دن میں کام کرتا اور رات کو پڑھتا۔ کالج کی فیس بھرنے کے لیے اسے اپنے باپ کی طرح لوہے کی دکان پر بھی کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن دفتر میں، علی نے دیکھا کہ جناب احمد کا ایک ملازم، رضا، گاہکوں سے جھوٹ بول کر زیادہ پیسے وصول رہا ہے۔ علی نے رضا کو روکا، بھائی، یہ غلط ہے۔ رضا نے طنز کیا، تمہاری کیا مجال جو مجھے سمجھاؤ، تم تو ایک غریب گھر کا لڑکا ہو۔ لیکن علی نے خاموشی سے کام جاری رکھا۔ اس نے دفتر کے تمام ریکارڈز کو ڈیجیٹل کرنا شروع کیا، جس سے غلطیوں کا پتہ چلنے لگا۔ جب جناب احمد کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے رضا کو برطرف کر دیا اور علی کو ترقی دے دی۔ میڈیکل کالج میں داخلہ علی کے لیے ایک نیا سفر تھا۔ شہر کے امیر گھرانوں کے بچے اسے غریب سمجھتے تھے، لیکن علی نے کبھی احساس کمتری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ ایک دن، ایک مریض کو فوری طور پر خون کی ضرورت تھی، لیکن اس کا خون کا گروپ نایاب تھا۔ علی کا خون کا گروپ وہی تھا۔ اس نے فوراً اپنا خون دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مریض جناب احمد کی بہن تھیں۔ جناب احمد نے علی کو بلایا، علی، تم نے میری بہن کی جان بچائی ہے۔ میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، جناب احمد، آپ نے میری مدد کی تھی جب مجھے ضرورت تھی۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ میڈیکل کالج کے آخری سال، علی کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ علاج کے لیے بہت سے پیسے درکار تھے۔ علی نے دن رات کام کیا،
लेकिन रकम पूरी ना हो सकी। एक रात अस्पताल के कैंपस में बैठे अली ने फैसला किया कि वो अपनी तालीम अधूरी छोड़कर पूरे वक्त काम करेगा। उसी वक्त इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। जनाब अहमद ने उसे 10 लाख रुपए भेजे थे। मैसेज में लिखा था, अली, तुम हमारे खानदान के लिए बेटे की मानिंद हो। ये रकम तुम्हारे बाप के इलाज के लिए है, कर्ज नहीं। अली ने मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट डिवीजन में ग्रेजुएशन किया। उसके वालिद अब सेहतयाब हो चुके थे। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या करे। एक दिन वो अपने पुराने मोहल्ले में गया जहां अब भी गुर्बत और बीमारियां आम थीं। इसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने बेटे को लिए डॉक्टर के पास जा रही है, लेकिन डॉक्टर के फीस के पैसे ना होने की वजह से वापस आ रही है। अली ने फैसला किया। इसने जनाब अहमद के सामने एक तजवीज रखी। मैं एक ऐसा क्लिनिक खोलना चाहता हूं जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। जनाब अहमद ने उसकी तजवीज को पसंद किया और उसे माली मदद फराहम की। अली ने अपने पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। शुरू में मरीज कम आते थे, लेकिन जल्द ही इसकी मोहब्बत और हमदर्दी की वजह से लोग दूर दराज से आने लगे। एक साल के अंदर अली का क्लिनिक एक छोटा अस्पताल बन गया। उसने अपने साथी डॉक्टरों को भी शामिल किया जो गरीबों की खिदमत करना चाहते थे। 5 साल बाद अली का छोटा सा क्लिनिक अब एक बड़ी हेल्थ केयर चेन में बदल चुका था। उसने पूरे मुल्क में ऐसे अस्पताल खोले जहां गरीब लोगों का मुफ्त या सस्ते दामों इलाज होता था। लेकिन अली की सबसे बड़ी कामयाबी इसका हेल्थ फॉर ऑल प्रोग्राम था। उसने एक ऐसी मोबाइल ऐप बनाई जहां लोग मुफ्त मशवरा हासिल कर सकते थे। इसके अलावा उसने दूर दराज के इलाकों में मोबाइल क्लिनिक भी शुरू किए जो गांव-गांव जाकर इलाज करते थे। एक तकरीब में, जहां अली को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा था, उसने अपने खिताब में कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसकी बुनियाद मेरे वालिद ने रखी, जिन्होंने मुझे मेहनत की अहमियत सिखाई। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद गरीबों की खिदमत को बनाया है। दौलत सिर्फ इस वक्त तक अहमियत रखती है जब तक आप उसे दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अली अब एक करोड़पति था, लेकिन इसकी सादगी बरकरार थी। वो अपने पुराने कच्चे घर में रहता था, जो अब एक अच्छे मकान में तब्दील हो चुका था। उसने अपने वालिद के लिए एक छोटी सी लोहे की दुकान खोली, जहां अबू बकर साहब अपने दोस्तों के साथ बैठकर वक्त गुजारते थे। एक दिन अली अपने पुराने स्कूल गया, जहां उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। इसने देखा कि एक लड़का, जिसका नाम भी अली था, क्लास में सबसे होशियार था, लेकिन गुर्बत की वजह से उसकी तालीम जारी रखना मुश्किल था। अली ने इस लड़के के वालिद से मुलाकात की, जो एक मजदूर थे। आपका बेटा बहुत होनहार है। मैं चाहता हूँ कि वो मेडिकल की पढ़ाई करे। मैं इसकी तमाम एक्सपेंसेस उठाऊंगा, अली ने कहा। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि किसी ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। अब मेरी बारी है कि मैं किसी और की मदद करूं। अली की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इसका हेल्थ नेटवर्क था, जो अब पूरे मुल्क में फैल चुका था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खुशी इस दिन मिली जब इसके आबाई गांव में पहला अस्पताल खिला। तकरीब के दौरान अली ने अपने वालिद के साथ खड़े होकर खिताब किया, हमारे मुआशरे में एक दीवार है जो अमीर और गरीब को अलग करती है। मैंने अपनी जिंदगी इस दीवार को गिराने के लिए वक्फ कर दी है। मेरी कहानी सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक आम इंसान दूसरों की जिंदगियों में तब्दीली ला सकता है।
उसने अपने सामने बैठे नौजवानों की तरफ देखा। आप में से हर एक के अंदर एक चिंगारी है। आप मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की खिदमत के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरे मुआशरे को बदल सकते हैं। अली की कहानी सिर्फ गुर्बत से अमीरी तक का सफर नहीं थी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने दौलत को मकसद के ताबे किया, जिसने कभी अपनी जड़ें नहीं भूलें और जिसने हमेशा दूसरों की मदद को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझा। और यूं, वो लड़का जो कभी कच्चे घर में रहता था, आज लाखों लोगों की जिंदगियों में उम्मीद की किरण बन चुका था, साबित करता हवा कि हकीकी कामयाबी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों के दिलों में जगह बनाने में है। नए चैलेंजर्स अली की कामयाबी की कहानी पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। अखबारात, टेलीविजन चैनल्स और सोशल मीडिया पर इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी वायरल हो रही थी। लेकिन शोहरत के साथ ही नई मुश्किलात भी आईं। एक सुबह अली के अस्पताल के सामने एहतजाज हो रहा था। एक ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि अली के अस्पताल में एक मरीज की गलत इलाज की वजह से मौत हो गई है। तुम अमीर बन गए हो, अब तुम्हें गरीबों की परवाह नहीं। एक शख्स चला रहा था। अली ने घबराने के बजाय सुकून से काम लिया। इसने मरीज के रिकॉर्ड्स का जायजा लिया और पाया कि मरीज को अस्पताल लाते वक्त ही इसकी हालत नाजुक थी। लेकिन अली ने फैसला किया कि वो मरीज के खानदान को मुआवजा देगा। इसके अहल खाना ने हैरान होकर पूछा, आप मुआवजा क्यों दे रहे हैं जब आप कसूरवार नहीं हैं? अली ने जवाब दिया, क्योंकि हमने इस मरीज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश नहीं की। हमारा मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं, हर मरीज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। इस वाक़ये ने अली की साख को मजीद मजबूत किया। अली के काम की शोहरत अब बैन अल-अक़वामी सतह पर फैलने लगी। आलमी इदारा सेहत ने उसे एक कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के अमीर तरीन डॉक्टर और हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स मौजूद थे। जब अली ने अपना तजुर्बा बयान किया तो सामीन हैरान रह गए। इसने कहा, हमने पिछले 5 सालों में 10 लाख से ज्यादा गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया है और हमारा अस्पताल नेटवर्क अब भी मुनाफा कमा रहा है। कॉन्फ्रेंस के बाद एक अमरीकी सरमायाकार ने अली को $10 मिलियन की पेशकश की, लेकिन अली ने शर्त रखी, मैं आपकी सरमायाकारी ले सकता हूं, लेकिन हमारे अस्पतालों में मुफ्त इलाज का सिलसिला जारी रहेगा। सरमायाकार ने पहले तो ये शर्त मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने अली के काम का जायजा लिया तो वो कायल हो गया। तुमने साबित किया है कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म और बिजनेस एक साथ चल सकते हैं, उसने कहा। एक दिन अली के दफ्तर में एक जाना पहचाना चेहरा आया। रजा, वही शख्स जो जनाब अहमद के दफ्तर में अली के साथ काम करता था और जिसने उसे तंग किया था, अब दरवाजे पर खड़ा था। अली साहब, मुझे मुआफ कर दीजिए, रजा ने आंखें नीचे किए हुए कहा। मैं नौकरी तलाश कर रहा हूँ। मेरी बेटी बीमार है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, रजा भाई, आपको मुआफ करने की कोई बात नहीं। हम सब जवानी में गलतियां करते हैं। आपकी बेटी का इलाज हमारे अस्पताल में मुफ्त होगा और आप कल से हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम शुरू कर सकते हैं। रजा की आंखों में आंसू आ गए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपके साथ बुरा सलूक किया था। क्योंकि हमें दूसरा मौका देना सीखना चाहिए, अली ने कहा। मेरे बाप ने मुझे सिखाया था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत इसका दिल है। अली की शादी हुई और इसके 2 बच्चे हुए। उसने अपने बच्चों को भी वही उसूल सिखाए जो उसके वालिद ने उसे सिखाए थे। हर हफ्ते वो अपने बच्चों को गरीब इलाकों में ले जाता, जहां वो जरूरतमंदों की मदद करते। उसकी बीवी, फातिमा,
जो खुद एक डॉक्टर थी, अली के काम में इसका हाथ बटाती। एक दिन उनके बड़े बेटे ने पूछा, अब्बा, हमारे पास इतनी पैसे हैं, फिर हम इतने सादा क्यों रहते हैं? अली ने अपने बेटे को गोद में लिया, बेटा, पैसे एक जरिया हैं, मकसद नहीं। हमारी खुशी पैसे में नहीं, दूसरों की मदद करने में है। उसने अपने बेटे को अपने पुराने कच्चे घर की कहानी सुनाई, जहां वो एक कमरे में रहता था। जब तुम्हें पता हो कि गुर्बत क्या होती है, तब तुम गरीबों की मदद करने की अहमियत समझ सकते हो। अली अब एक नए ख्वाब के साथ आगे बढ़ा। उसने हेल्थ एजुकेशन विलेज का तस्वुर पेश किया, एक ऐसा प्राजैकट जहां गरीब बच्चे मुफ्त में मेडिकल की तालीम हासिल कर सकें। इस मंसूबे के लिए उसे बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। हुकूमती अफसरान, जमीन के मालिकान और यहाँ तक कि कुछ तालीमी इदारे इसके खिलाफ हो गए। लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपनी पूरी जायदाद रहीन रखकर ये प्राजैकट शुरू किया। जब लोगों ने पूछा, तुमने अपनी सारी दौलत का खतरा क्यों मोल लिया? अली ने जवाब दिया, अगर हम अपने ख्वाबों पर यकीन रखते हैं तो कोई खतरा बड़ा नहीं होता। 2 साल बाद हेल्थ एजुकेशन विलेज का इफ्तिताह हुआ। पहले बीच में 100 तलबा ने दाखिला लिया, जिनमें से ज्यादातर गरीब घरानों से थे। इफ्तिताही तकरीब में अली के उस्ताद, इसके वालिद, जनाब अहमद और वो सब लोग मौजूद थे जिन्होंने इसके सफर में उसकी मदद की थी। अली ने खिताब करते हुए कहा, आज हमने एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी है जो न सिर्फ डॉक्टर तैयार करेगा, बल्कि ऐसे इंसान तैयार करेगा जो खिदमत खल्क को अपना मकसद जिंदगी समझें। उसने अपने सामने बैठे नौजवान तलबा की तरफ देखा, तुम में से हर एक के पास एक हीरा है। हम सिर्फ इस हीरे को तराशने का काम कर रहे हैं। अली अब एक बुजुर्ग आदमी बन गया था। इसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन इसके जोश व जज्बे में कोई फर्क नहीं आया था। इसका बेटा अब अस्पताल नेटवर्क चला रहा था और उसकी बेटी हेल्थ एजुकेशन विलेज की डायरेक्टर थी। एक दिन अली अपने पोते के साथ अपने पुराने कच्चे घर की जगह पर खड़ा था, जहां अब एक अजीम उस्शान अस्पताल तामीर हो चुका था। दादा, अब्बा, आपने ये सब कैसे किया? पोते ने पूछा। अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने ख्वाबों पर यकीन रखा, मेहनत की और कभी अपनी असल को नहीं भूला। इसने आसमान की तरफ देखा, तुम्हारी कामयाबी का राज तुम्हारे दिल में है। अगर तुम दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हो, तो तुम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हो। और यूं अली की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका विरसा नई नस्ल में मुंतकिल हो गया। उसकी कहानी साबित करती है कि गुर्बत से अमीरी तक का सफर सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ख्वाबों पर यकीन रखने, मेहनत करने और दूसरों की मदद करने के बारे में है। अली ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों में उम्मीद की किरण बन गया। ये साबित करता हवा कि हकीकी कामयाबी वो है जो दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाए।